I request the captains of both the teams, please join us here for the toss. Well, next match will happen between Lagan 11 and Khandelwal Light Riders. We have the captains here. All right. Can we have you both here in the center, please? And we request to bring the coin. Can we please have the coin for the toss? Well, tell the coin Harai. Jante hai, what will be your choice if you win the toss? I'll bet. Any specific reason? Yeah. Chasing is a little more difficult. इनसे भी जानते हैं भाई अगर आप टॉस जीत गए तो आप क्या करोगे? Actually, I don't think we should do the toss because we want to bowl first. All right, but you know we have this amazing coin over here for Nagpur Cricket War. देखिए कितना खूबसूरत coin है. So we'll have that toss to find out who is the toss का boss for today, presented by Tatwam. तो कौन call करेगा आप में से? तो सर ये है ball, ये है bat. इसमें से कुछ भी आप call कर सकते हैं. This is ball and bat. But irrespective of that, when you win the toss, you can select whatever you want to do. All right? You're calling? Yes. All right, bat it is. Lagan 11 toss जीत चुके हैं. And sir, this is for you, a special souvenir from Nagpur Cricket War. Well, congratulations. You won the toss, and I request you both, please prepare your players, and we are all set for the third match. Thank you so much. This is Nagpur Cricket War Season 3, ladies and gentlemen. Get ready for more action on the ground. Rani Koti Group and our Sandesh Group presents Nagpur Cricket War Season 3, powered by Smart Flyer and Tuli Suits, co-sponsored by Centrepoint, Tatvam, Spa Villa, Chokardhani Nagpur, VK Mobile, Kasbah Hills, Kanhaiya Building Needs, Edelweiss, Sai Dynamic TVS. Ladies and gentlemen, be with us here. Be ready for more action on the ground. This is Nagpur Cricket War Season 3. Alright, Lagan 11 ने टॉस जीत लिया है and they have elected to bat first. Alright, and Khandelwal Knight Riders bowl करने वाले हैं. So guys, get ready for an exciting match ahead. Rani Koti Group and our Sandesh Group presents Nagpur Cricket War Season 3, powered by Smart Flyer and Tuli Suits, co-sponsored by Centrepoint, Tatvam, Spa Villa, Chokadhani Nagpur, VK Mobile, Kasbah Hills, Kanhaiya Building Needs, Edelweiss, Sai Dynamic, TVS. Media partner, Nation Next. Event partner, The Shadi Makers. Broadcast partner, WDZ, UCN News and BCN News. Beverage partner Soul, Orange and Purple Cap sponsor Khandelwal and Mukims. Ladies and gentlemen, get ready. We are all set for the third match on the first day of our 5-day tournament, Nagpur Cricket War. Both the teams, get ready. The match is between Lagan 11 and Khandelwal Light Riders.
Khandelwal and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. Khandelwal and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. खांडेवाल किंग राइडर्स के बीच ये तीसरा मुकाबला नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का तीसरा मैच। पहले गेंद ओवर पिच लेंथ की बॉल, कदमों का इस्तेमाल किया, बैक टू बॉलर खेला, अच्छी फील्डिंग। अगर वैसे होगा नहीं लेट, बाय द वे लेट हुआ तो एक आध ओवर कर लेना। तो एक रन बने। लगाने लेवल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कप्तान का, कैप्टन का। कट किया, गली पोजीशन में गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। लगाने इलेवन कि दोनों ही बल्लेबाज लवी, ये गेंद और अच्छा ड्राइव किया, एक रन मिलेगा। मिड विकेट के रीजन में खेला था, आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद ऑफसाइड में एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे खेला, एक रन मिल जाएगा। लवी और सौरभ और लवी हल्के हाथों से कट किया, फाइन लेग पोजीशन में, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन रन मिलेगा सिर्फ एक। ये जो क्रिकेट के शॉट होते हैं, ये स्ट्रोक जो होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद प्रिय होते हैं, जिसे देखने में मजा आ जाता है। रोक के संभाल के खेले हैं जब तक कि गेंद को फील्ड करते। पहले तो मूड बनाया था रन लेने का, लेकिन अपने इरादे को बदला, वापस चले गए क्रीज में, कोई खतरा नहीं लिया। ओवर खत्म हुआ, इस तरह से लगान का पहला ओवर खत्म हुआ। 4 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कप्तान लगान का। अब तक 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। आपको सिर्फ 54 गेंदें ही खेलने को मिलती है, 54 बॉल्स को आप फेस करते हैं। बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं। ऑफसाइड में एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद को ढकेला, पंच किया, बैकफुट पे चले गए थे, पंचों का इस्तेमाल किया, अच्छा स्ट्रोक, फ्री बॉल। नहीं उस टाइम नहीं बोल रहे यार, इतना तो देख रहे हैं। रुक के संभाल के खेले, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया। ये गेंद स्ट्रोक के लिए गए, अच्छा स्ट्रोक, वहां पर भाग रहे। 1 रन, दूसरे रन अभी तक शायद बना नहीं है, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्वीप किया, पहले तो
स्कूप करने की कोशिश की, फिर देखा गेंद शॉर्ट है, अपने इरादे को बदला और दोनों पैरों के बीच में काफी खिंचाव रखा, कैप रखा और एक अच्छा स्ट्रोक खेला एक रन के लिए। लगा ले लेवल। ऑफसाइड में एक रन यहां पर मिल जाएगा। लगाने 11 जैसा कि आपको पता है कि आजादी से पहले के समय में इस बार फिर से स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे एक रन मिल जाएगा। आसानी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक एक रन सौरभ और लवी ने। एक बार फिर से ड्राइव किया। इस एक रन के साथ ओवर खत्म हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 2 ओवर की गेंदबाजी 10 रन बिना किसी नुकसान के एक धैर्यशाली बल्लेबाजी की है, विश्वास के साथ खेले हैं, विकेट नहीं गंवाया है। हालांकि रन औसत अगर देखा जाए तो खराब नहीं है। 2 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन बने हैं। लवी हैं स्ट्राइक पर, 18 नंबर की जर्सी। बॉलर्स ने लखन की ये गेंद बहुत बारीक कट किया, फाइन लेग पोजीशन में गेंद को जब तक फील्ड करते एक रन। बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट इसके कुछ अपने ऑफसाइड में कदमों का इस्तेमाल, तो मैं बता रहा था कि बॉक्स क्रिकेट के अपने रूल और रेगुलेशन है। एक बार फिर से ड्राइव किया लेग साइड में, एक रन मिल जाएगा। अच्छी साझेदारी यहां पर पनप रही है। लेग से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का प्रदर्शन यहां पर अंपायर के द्वारा। शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और फिर से पैर से टकराई, वहां पर ज्यादा आत्मविश्वास से खेले नहीं, विश्वास की कमी दर्शी इस स्ट्रोक में। एक एक रन कीमती है इस मैच में और हल्के हाथों से आधा स्ट्रोक खेला, फिर अपने इरादे को बदला, लेकिन एक रन मिल जाएगा यहां पर। आसानी के साथ पूरा कर लिया। ओवर खत्म हुआ। 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 3 ओवर्स में 14 रन। लाइव इस मैच का आप आनंद ले सकते हैं। Khandelwal and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. आप सीधा लाइव जो Starts सकते at हैं 27 lakhs with only one नागपुर flat per क्रिकेट floor. वार Contact us now. सीजन 3 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच यहां पर रानी कोठी के ग्राउंड पर खेला जा रहा है और बहुत ज्यादा समर्पण इस मैच को, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में किया गया है। निश्चित रूप से वो लोग बधाई के पात्र हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 14 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। साथी और वरिष्ठ कमेंटेटर अलंकार गौतम जी के शब्दों में आंखों देखा हाल। धन्यवाद शीश। तो इस समय 3 ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर के समाप्ति पर जो रन संख्या मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं 14 बिना किसी नुकसान के। ये बढ़िया शॉट, हवा में फील्डर पहुंचेंगे, जी रही अभी अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, थोड़ा इनसाइड आउट खेला इसे। जैसे देखा ऊपर का अंदर का बॉल है, क्या बैलेंस था इस शॉट में। पैरों की ओर का बॉल और बिल्कुल इनसाइड आउट और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन तलाश लिए बल्लेबाज ने। वापस एक बार फिर फ्लैट शॉट और देख लिया था, फील्डर को चेक किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से वापस 6, बैक टू बैक 6 लवी के बल्ले से। तो
जैसे देखा ऊपर का बॉल है, अंदर का बॉल है, इस बार सीधा शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन, नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज के बिल्कुल सिर के ऊपर से जैसे खेला 6 रन के। यहां पर इस बार एक बार फिर लगातार उसी और बल्लेबाज का ये स्ट्रांग जोन है, पैरों पे बॉल को करेंगे तो वो बड़ी आसानी से उसे अपने मनचाहे तरीके से खेलेंगे। एक बार फिर कलाइयों के सारे धकेला मिड विकेट एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। बढ़िया क्रॉस स्वीप किया है, 1 रन मिलेगा। यहां पर सही सोच बल्लेबाज जो हैं इस समय स्ट्राइक पे सौरभ, उन्होंने देखा कि लवी का बल्ला अच्छा चल रहा है तो बेहतर है जल्दी से उन्हें स्ट्राइक दी जाए। बढ़िया निकल के गए हवा में ऊंची और ये 6 रन और यहां पर तीसरा छक्का इस ओवर में। आज के दिन का सबसे खर्चीला ओवर साबित होता हुआ ये। तो जैसे ही देखा ये बॉल ऊपर का है, स्टेप आउट किया और एक बार फिर उसको लॉफ्टेड शॉट उछाल के खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फील्डर पूरे तरीके से आश्चर्यचकित रहे। ओ ये अच्छा बॉल, पूरे ओवर का अंतिम बॉल सबसे अच्छा बॉल था। यहां पर अपील हो रही है लेकिन जी नहीं, अंपायर ने उस अपील को खारिज किया। फ्री बॉल ओ यहां पर ये हुआ पलटवार, जवाबी हमला। लवी को चलता किया आखिरकार जाते जाते। ऊपर का बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव के लिए गए थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर अपना काम कर गए। इस प्रकार से विकेट नंबर 1। एक खर्चीला ओवर, लेकिन जाते जाते उस ओवर को जैसे रिकवर किया बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने। तो इसी के साथ रन संख्या बता रहे हैं मेरे साथी स्कोरर 27 34। 20 रन आए पिछले ओवर से, लेकिन एक विकेट जाते जाते खतरनाक बल्लेबाज जिन्होंने 3 छक्के लगाए थे उसे उसी ओवर में चलता किया हिसाब बराबर जिसे कहते हैं ना, पलटवार जिसे कहते हैं, काउंटर अटैक, जवाबी हमला, वो करने में कामयाबी हासिल करी गेंदबाज ने। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन एक मात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। 34 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। स्ट्राइक पे है बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर हो, यहां पर कैच था लेकिन जी नहीं, मौका नहीं बना पाए और फ्री बॉल है ये। फिलहाल तीसरा मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। आज सुबह आज जो दूसरा मुकाबला था बेहद रहस्यमय मुकाबला। टीम बिलाइव ने लो टोटल को डिफेंड किया। एमआरएस अमित है गेंदबाज। स्ट्राइक, बढ़िया स्वीप, हालांकि रन सिर्फ 1 मिलेगा इस बेहतरीन स्वीप शॉट में। रिस्ट गई थी, कलाई गई थी शॉट में और बिल्कुल कारपेट के सहारे गया उनका ये शॉट। फ्री बॉल है ये लीजिए एक बार फिर। जो एक मानक तय किया गया है स्पीड का, अगर उससे ज्यादा बॉल गति से जाएगी तो फिर फ्री बॉल हो जाती है। फ्री बॉल मींस रिबॉल। अच्छा खेला है 1 रन के लिए। अच्छी सोच है दोनों बल्लेबाजों की। रनिंग बिटवीन द विकेट को फोकस करके चल रहे हैं, जो क्रिकेट के हर फॉर्मेट की सबसे एक कारगर रणनीति होती है। और वापस खेल दिया एक बार फिर पॉइंट कवर पॉइंट एरिया में और रन मिलेगा 1। अच्छा खेल दिया मिड विकेट एरिया में 1 रन के लिए। एक बार फिर डॉट बॉल है ये। ओवर मुकम्मल, ओवर नंबर 5 और रन संख्या 40।
40, 5 ओवर 40 रन, एक आउट। अब 4 ओवर और गेंदबाजी होनी है, देखना क्या कुछ होता है। जी हाँ, जैसा बार बार मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शीश कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ करनी हुई, खासतौर से लवीन जी और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से इस नागपुर क्रिकेट बार को एक तरीके से मैनेज किया गया है, आकर्षण का केंद्र बन चुकी है ये। Khandelwal's and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. क्रिकेट प्रेमी जुड़ रहे हैं। ये भव्य प्लेस, द इम्प्रेस पैलेस, ग्रुप ऑफ रानी कोठी, वास्तव में एक बड़ा ही लोकप्रिय वेन्यू, और क्रिकेट दरअसल अब हमारे संस्कारों में शामिल हो चुका है। बढ़िया कलाइया ले गए मिड विकेट एरिया में, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। अब जो ये वेन्यू की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर सामाजिक आयोजनों के लिए, वैवाहिक समारोह हो, इंगेजमेंट सेरेमनी हो, बर्थडे हो, इस प्रकार की सेरेमनीज, इस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्रिकेट क्योंकि अब हमारे संस्कारों में शामिल हो चुका है, अब तो क्रिकेट को मनोरंजन क्योंकि मनुष्य की प्रकृति रही है, तो शादी वैवाहिक समारोह में वर पक्ष वधु पक्ष की भी एक टीम बनाई जाती है, 2, 3, 4 टीमें बनती हैं और एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, संबंधों में घनिष्ठता आती है, तो उसका बेहतर माध्यम क्रिकेट को चुना गया है। तो जो WDZ के माध्यम से हमारे क्रिकेट प्रेमी अभिभावकगण सुन रहे हैं, या जो युवा सुन रहे हैं, अगर आपके घर में शहनाई बजने वाली है तो आप द इम्प्रेस पैलेस को चुनिए और क्रिकेट को भी उसका एक पार्ट रखिए। बढ़िया स्कूप तो क्या, स्वीप किया, टॉपेज लिया बॉल ने, और हवा में थी जरूर, लेकिन लॉन्ग लेग का एरिया खाली है, 1 रन मिलेगा उस एरिया में। इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बोर्ड पर रन संख्या बता रहे हैं मेरे साथी स्कोरर जा पहुंची है 45, 5 रन ओवर से आए। प्रीतम हमारे ऑनलाइन स्कोरर है क्रिकेट हीरोज में, जबकि मैनुअल स्कोरर हैं निश्चल, वास्तव में बड़े इनोसेंट लेकिन बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है। दोनों काफी युवा हैं। और हमारे अंपायर्स की बात की जाए तो अंपायर्स का हम धन्यवाद देंगे, अमन श्रीवास्तव और अंपायर ऑस्कर मिलर, एक है किलर मिलर, ये हैं ऑस्कर मिलर। फिलहाल ओवर टू यू मोहम्मद शीश। धन्यवाद गौतम जी। अच्छा शॉट मिड विकेट के एरिया में 1 रन मिलेगा। सातवें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पे है, 46 रन बने हैं अब तक। लगान 11 का, और लगान जब उस पर चर्चा कर रहे थे कि ये गेंद और लेग स्टंप को बिल्कुल चिपक कर चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत देर तक अंपायर ने सोचा, उसके बाद वाइड करार दे दिया। 1 अतिरिक्त रन मिल जाएगा। 47 रन, बेहतरीन स्ट्रोक इस बार। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के एरिया में 1 रन के लिए खेला। शॉर्ट गेंद थी, कदमों को अपने दोनों चीरा और गेंद को इस बार फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, और पैड से टकराई गेंद वहीं पर रुकी। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, सीधे ओवर थ्रो किया। एक बार फिर से वही शॉट, कॉपीराइट शॉट खेलते हैं और अच्छा दर्शनीय स्ट्रोक, सिर्फ दिशा दे दी गेंद को और 1 रन हासिल कर लिया। यह भी एक अच्छी ट्रिक है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, क्योंकि सिर्फ 54 गेंदों का सामना करना है आपको अपनी इनिंग्स में। और थोड़ी सी पैर से गेंद टकराई है, वहीं पर लुढ़क गए। दर्द हो रहा है और हमारी फिजियो टीम भी तैयार है। फिलहाल ज़्यादा चोट नहीं आई है और क्रिकेट में एक पार्ट है ये। लगान के बल्लेबाज थोड़ा सा सौरभ पैर में खिंचाव आ गया है, इस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। कराह उठे गेंद और
अपने पैर को बिल्कुल साथ साथ ले गए, बैट को भी साथ रखा, बैट पैर से टकराया जिससे थोड़ी सी चोट आई है। और देखिए खेल भावना ये होती है कि सभी वहाँ पर आ गए और उनके प्रति सहानुभूति रखी और सहानुभूति के साथ साथ एक बार फिर से वो तैयार हो गए। तो क्रिकेट भारत में एक सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक धर्म का रूप ले चुका है और क्रिकेट वो है जो रगों में लहू बन के दौड़ रहा है हिंदुस्तान के नागरिकों के, विदेश के नागरिकों के। तो क्रिकेट सरहदों को पार करके ये गेंद फिर से बेहतरीन ड्राइव, स्क्वायर लेग एम्पायर के पीछे खेला, अच्छा शॉट, 1 रन हासिल कर लिया। 50 रन 50 रन लगान के पूरे हुए। लगान ने 50 रन वसूल लिए हैं अब तक। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। आमिर खान की मूवी आई थी लगान और लगान एक कर था। देखिए 50 रन पूरे होने के बाद जो लगान के प्लेयर्स हैं कितना हर्ष के साथ आवाज निकाल रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य। अच्छी बल्लेबाजी और खासकर सौरभ जो हैं ओपन करने आए तब से अब तक रुके हुए हैं। विकेट के बीच तेज दौड़ भी लगाते हैं और सूझबूझ के साथ स्ट्रोक किया सिलेक्शन करते हैं। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है पूरी तरह से एक क्रिकेटर की। और यहां पर होंगे सौरभ आउट, गेंद को भेज दिया नेट से बाहर, चले आ रहे हैं खुद वापस पवेलियन। एक अच्छी इनिंग खेलकर वापस रोल आउट होकर वापस आ गए पवेलियन। खांडेलवाल, किंग राइडर्स, नाइट राइडर्स और लगान 11 के बीच ये तीसरा मुकाबला, महामुकाबला, नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का तीसरा मुकाबला। बेहद लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट नागपुर में और बेहद दर्शनीय, लोगों की दिलों से जुड़ा हुआ ये टूर्नामेंट। इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं और दुनिया के तमाम देशों में इस मैच का प्रसारण हो रहा है और उनके हमें रिस्पांस भी मिल रहे हैं। जोया आए हैं बल्लेबाजी करने। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चूमती हुई स्लोवर वन थी, चूक गए, पूरी तरह से कट करने की कोशिश की थी। इस बार अच्छा पंच और अंपायर का इशारा इसी बीच नो बॉल का। लीजिए एक चांस भी बना था वहां पर, कैच भी छूटा और अंपायर का इशारा इस बीच नो बॉल का। ज्यादा कुछ गेंदबाज के लिए है भी नहीं ज्यादा दम और फ्री हिट का इशारा। इस फ्री हिट को कितना भुनाते हैं लगान के ये खिलाड़ी। ड्राइव किया, यॉर्क लेंथ की गेंद थी, सीधा बैक टू बॉलर खेल गए, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इस तरह से एक अच्छा मौका उनके हाथ से निकल गया। जोया के लिए कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल कदमों का, लेकिन गेंद स्टैंड से पहले ही रुक गई। 1 रन सिर्फ मिलेगा यहां पर प्रवेश को। प्रवेश का ये अच्छा स्ट्रोक था। जोया को ऑफ स्टंप से थोड़ा सा और बाहर निकाल दिया, कोई मौका नहीं, समझ नहीं सके, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। फिर से कदमों का इस्तेमाल और एक बार फिर से नेट से बाहर गेंद और इस बार आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं जोया। लगान का स्कोर है 53, 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। एक मात्र ओवर बचा है, यानी 6 गेंदें यानी और 6 गेंदें यानी शेष हैं। इसमें कितना कुछ करते हैं प्रवेश और दूसरे नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज हैं। तरुण आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने और इस वक्त इस
स्ट्रोक और गेंद गई बिल्कुल सीधो सीध में, नपा तुला पैरामीटर शॉट 6 रन। बिल्कुल शॉट खेला नाप तौल के, 6 रन मिल गए। ये एक और स्ट्रोक और इस बार फिर से गेंद हवा में, अंपायर का इशारा यहां पर आ गया 6 रन का। बैक टू बैक बाउंड्री, लगातार 2 गेंदे 2 छक्के, एक ही अंदाज में खेला गया, 2 छक्का, स्कोर जा पहुंचा 65 रन 65, 3 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदे यानी शेष। तरुण की 2 गेंदों पे 2 छक्के। फिर से एक और स्ट्रोक, एक बार फिर से 6 रन। लीजिए हैट्रिक छक्का इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में पहली बार किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगातार 3 गेंदें 3 सिक्सेस। वाओ, 18 रन खर्च किए, अब तक का सबसे महंगा ओवर, और प्राइस 5000 रुपीज हैं लगातार 3 छक्के पे, और वो जीत लिया है प्रवेश ने। चौथी गेंद एक बार फिर से स्ट्रोक के लिए गए और इस बार फिर से 6 रन। लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, लगान पूरा वसूल रहे हैं। जी हाँ, 4 छक्के पे लवीन जी बता रहे हैं 10,000 रुपया। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि तुम रन वर्षा करो, तुम पे धन वर्षा होगी। यानी कि यहाँ 4 छक्के लगा के रन वर्षा करी, 10,000 रुपए की वर्षा उन पे हो चुकी है। जी, छक्के लगाओ, पैसे ले जाओ। एक बार फिर से 6 रन, 5वां छक्का, क्या कहेंगे अब? 15,000 रुपए जीत चुके हैं। और अगर 6 छक्के, लवीन जी अगर 6 छक्के लग जाते हैं तो इस पारी में शीश कहें तो यथो नाम, वो कहते हैं ना जैसा नाम वैसा काम। जी, तो 5 लगान छक्के जो है पूरे तरीके से रनों का लगान वसूलते हुए। जी जी, ये लगान जो है उसी तरह से वसूला है। 5 गेंदों पे 5 छक्के, क्या खूबसूरत बाउंड्री। तरुण को सोचना होगा आखिरी बॉल पे कैसे बचा जाए। युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे इंग्लैंड में। एक और स्ट्रोक और इस बार फिर से 6 रनों के लिए गए बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्के, और इनाम की घोषणा की नवीन जी ने 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। वाओ, क्या क्रिकेट, 6 गेंदों पे 6 छक्के और पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए इनाम। परवेश ने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए हैं। फिलहाल हम चलते हैं अमर जाजू और उनकी टीम के पीस। ओवर टू यू अमर जाजू। यहाँ पे मैं चाहूंगा इस बल्लेबाज से जरूर आपको बात करनी चाहिए। प्रवेश भाई कहाँ है? प्रवेश भाई हमारे सामने आ जाए। किसी चमत्कार से कम नहीं। ओवर टू यू परवेश एंड पूजा सिंह। आइए आइए मेरे भाई, आज के युवराज सिंह, जोरदार तालियां बजाइए भाई के लिए। आइए आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ बात करते हैं परवेश भाई। परफॉर्मेंस से तो झंडा एकदम फहरा दिया है, हाथ में भी लगान 11 का झंडा लेके एकदम। व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो आप प्रवेश भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। 6 बॉल पे 6 छक्के हमारे भाई ने। जोरदार तालियां बजाइए भाई के लिए। अरे जोरदार तालियां बजाओ तो जोरदार बजाओ यार, ताली बजाओ भाई के लिए। तो भाई सबसे पहले मुझे बताइए कि अब आप जब आपने वो ओवर खेलना शुरू किया तो ऐसा कोई दिमाग में था कि इस ओवर में पूरी धुनाई करनी है? लास्ट ओवर था, अटेम्प्ट तो करना ही था और पावर प्ले का कंपनसेशन तो करना ही था। पावर प्ले में एक भी बाउंड्री नहीं आई तो उसका कंपनसेट तो करना पड़ेगा। और लेकिन जब 5 छक्के हो गए आपके, तब वहाँ पे सब चिल्लाने लगे कि हमारे कमेंटेटर भाई साहब भी जो है वहाँ पे सर है, वो कहने लगे कि युवराज सिंह ने मारे थे 6 बॉल पे। तो ऐसा कोई प्रेशर महसूस हुआ कि यार 6वें बॉल में प्रेशर का एक का कौन सा प्रेशर? लास्ट ओवर है तो मालूम था आपको मारोगे ही आप छक्का इस पे भी। मारना तो था ही।
क्या बात है यार। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, 6 बॉल पे 6 छक्के मारने पर प्रवेश भाई आपको प्राइज मनी के तौर पे मिला है 25,000 रुपए। लवली यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हेलो, थैंक यू अबर, थैंक यू पूजा। तो फिलहाल यहाँ पर क्रिकेट है। देखिए पिछले मैच को देखें, पिछले मैच में 40 रन डिफेंड हुए, तो लग रहा था कि शायद यहाँ पर टोटल कुछ सीमित रहेगा, लेकिन मेरे साथी स्कोरर जो हैं इस समय बता रहे हैं मुझे निश्चल स्कोर टोटल है 90। सबसे बड़ा टोटल इस संस्करण का बन चुका है तीसरे मैच में। 90 रन का 89 रन बनाए, से पहले 83 रन बनाए थे टीम डिफेंडिंग चैंपियन कन्हैया वॉरियर्स ने। अब यहाँ पर 90 रन बनाने 9 ओवर में, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पिछले मैच में 40 रन जब डिफेंड हुए थे, तो क्रिकेट की सत्यता ये है, कई बार लो टोटल डिफेंड हो जाता है और कई बार बड़े से बड़ा टोटल भी चेज हो जाता है। तो अब देखना है कि क्या ये टोटल चेज हो पाएगा। याद कीजिए 2006 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 434 रन बने थे और अगली इनिंग में साउथ अफ्रीका ने उस स्कोर को चेज कर लिया था। क्रिकेट है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बड़ा रहस्यमय खेल है। अब किसी ना किसी को उसी प्रकार का जैसे परवेश ने किया वो प्रदर्शन इन 9 बल्लेबाजों में से किसी एक को दिखाना होगा। अलंकार सर, जिस तरह की बल्लेबाजी की, ये रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल ये सीजन 3 में कौन तोड़ेगा? जी हाँ, अब या तो अब ये देखना है कौन तोड़ता है। और यहाँ पे अभी हम जो इतिहासकार हैं, नागपुर वार का ये तीसरा संस्करण है, जरूर हम जानकारी लेंगे कि क्या इससे पूर्व में ऐसा प्रदर्शन। Khandelwal's and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only 1 flat per floor. Contact us now. एक बार फिर गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ ऊपर का बॉल, बढ़िया फ्लिक किया, फुल टॉस बना के, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन सही समय पे वापस लौटे। नजदीक के फील्डर की तारीफ करनी होगी, काफी ऊपर बॉल को किया था, फुल टॉस बना के खेला। धीरू हैं फील्डर, अच्छी फील्डिंग धीरू के द्वारा। हालांकि बॉल हाथ के बजाय जूते में आई, टेनिस का फोरहैंड शॉट, फील्डर की तारीफ करनी होगी, अच्छी फील्डिंग। अब एक बार फिर द्रविन है स्ट्राइक पर फिलहाल। वापस ये कट कर दिया है थर्ड बैड एरिया में, रन सिर्फ एक मिलेगा। केकेआर यानी कि केकेआर खंडेलवाल नाइट राइडर्स, एक है कोलकाता नाइट राइडर्स, या खंडेलवाल नाइट राइडर्स। तो फिलहाल वापस बढ़िया रिवर्स गए खेलने के लिए, रन सिर्फ एक मिलेगा। अब कई बार ये जिज्ञासा पैदा होती है क्रिकेट में, जब आपको एक रन के लिए इतना रिस्क लेना। याद कीजिए 1987 का विश्व कप इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन माइक गैटिंग जो है पीटर टेलर को रिवर्स खेलने के लिए चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने, और माइक गैटिंग ने जो रिवर्स स्वीप खेला था पीटर टेलर को, और वहां से इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप हार गया था। हालांकि उसी वर्ल्ड कप में डेविड हाउटन जिम्बाब्वे के विकेट कीपर बल्लेबाज क्रॉस गए खेलने के लिए, बढ़िया विकेट कीपिंग एसपी हैं, विकेट के पीछे बॉल को पकड़ा, उछाला जश्न के तौर पे, लेकिन जी नहीं, अंपायर ने उस अपील को एक सिरे से खारिज किया। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन बिना किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। जीत के लिए 85 रन चाहिए बाकी बची हुई 48 गेंदों पर। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। गेंदबाज देखना है, रोमन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रोमन आएंगे? 29 नंबर की टी शर्ट में रोमन, और तो हम यहाँ पे एक बार फिर लवीन जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पे सराहना चाहेंगे कि इतना भव्य आयोजन जो लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू रहा है।
वापस ऊपर का बॉल निकल के गए लॉन्ग ऑन एरिया में, एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फ्लाइटेड बॉल, थोड़ा सा स्टेप आउट किया और बिल्कुल डाउन द ग्राउंड खेला एक रन के लिए। द्रविड़ के पास ये छोटा बॉल, बढ़िया बैकफुट पे वेट ट्रांसफर करते हुए पुल लगाया, हालांकि बॉटम हैंड नहीं किया, और बॉटम हैंड ले जाना ज्यादा उचित भी नहीं है, क्योंकि बॉटम हैंड जाएगा तो बॉल एयर में जाएगा और खतरा हो सकता है आउट होने का, क्योंकि जो दायरा है उससे बाहर अगर बॉल चली जाती है ऊपर से। तो एक रन मिला फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाज को। 7 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि ओवर नंबर दूसरा प्रगति पर। ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला है मिड विकेट एरिया में, और ये लीजिए विकेट लीजिए जनाब, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। द्रविड़ को वापस आना होगा। तो पहली विकेट का पतन। यहां पर इस समय अब हमारा कैमरा गया है नहीं गया, लेकिन लगान 11 के में हमारी निगाहें जरूर गई। जैसे ही म्यूजिक बजा वहां जश्न का दौर शुरू हो गया। गणपति बाप्पा मोरिया। तो वो तो इसी तरीके से बोल रहे हैं गणपति बाप्पा मोरिया। अभी अभी एक बल्लेबाज रन आउट हो रिया। तो फिलहाल तो इसी के साथ पहली विकेट का पतन 7 के योग पर हो चुका है। अगले बल्लेबाज गए हैं जॉन्टी। अब देखना है जॉन्टी, एक वो नाम है, बढ़िया फ्लैट बैटेड शॉट, एक ही रन मिलेगा। फील्डर देखता है रोक पाएगा, जी हाँ घूम गया था बॉल लेकिन सही रोका, एक रन मिलेगा। अब जॉन्टी के पास स्ट्राइक। देवेश, अच्छा खेला है थर्ड बैट एरिया में, एक रन दौड़ करके पूरा किया। देवेश के पास स्ट्राइक है फिलहाल। जॉन्टी अब वापस स्ट्राइक पर आए हैं। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 9। जी हाँ, हमारे एक और स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्तिक। अभी गणपति बाप्पा के जो भाई थे कार्तिकेय, ओह मौका चूका, फ्लाइटेड बॉल, थोड़ा सा उत्तेजना में आ गए थे, आक्रामक हो गए थे, जोर से मारने के लिए गए थे स्पिन को खोजते हुए। बॉल बल्ले के बिल्कुल टू एंड से होती हुई निकली, लेकिन विकेट कीपर नहीं ले पाए, अन्यथा यहाँ पे स्टंपिंग के चांस था। विकेट नंबर 2 की ओवर नंबर 2 की समाप्ति, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 9 रन। 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकंड। हमारे स्कोरर निश्चल, कार्तिक और प्रीतम, ये हमारे 3 स्कोरर हैं। बड़े अच्छा WDZ आशीष जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं WDZ के, उन्हें हम विशेष तौर पे, आज पूरे देश में एक लीडिंग चैनल बन चुका है WDZ, और जो व्यूवर्स, जो अगर आप भविष्य में कोई आयोजन कर रहे हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट आप करना चाहते हैं, तो WDZ से बेहतरीन विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। हर बड़े से बड़ा इवेंट, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हर एरिया में डिमांड है इस समय WDZ की, एक लीडिंग चैनल हमारे देश का। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कट किया थर्ड बैट एरिया में, एक रन मिलेगा। उधर से वापस गेंदबाज तो आशीष, WDZ के मैनेजिंग डायरेक्टर, और बहुत बढ़िया उनकी टीम, कैमरा वर्क, कैमरामैन हो, एडिटर्स हो। यहां पर खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो लग जाती है, एक स्टिक दिखाई देती है। तारीफ तो करनी होगी यहां पर फील्डर की, क्या कमाल का थ्रो, फर्स्ट टाइम बॉल को उठाया, फर्स्ट टाइम थ्रो किया। हालांकि थ्रो निशाने से दूर रहा, अगर निशाना लग जाता तो यहां पर बल्लेबाज को लेने के देने पड़ जाते। एक रन वापस, फुल टॉस, और ये बॉल बाय बाय बॉल और बाय बाय बैट्समैन। ज्यादा जोर से मार दिया, ज्यादा ताकत लगा ली। तो इस समय आप देख रहे हैं जश्न का दौर लगान 11 में। कैमरामैन जरूर दिखा रहे होंगे, जब कोई खुशी का पल आता है तो भाई साहब जो फ्लैग लेके जो डांस कर रहे हैं वो एक अलग ही उन पे जच भी रहा है, पूरे उसी गेटअप के हैं। और गणपति बप्पा इस बार नहीं बोला उन्होंने, गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, लालबाग के राजा। राजस्थान में जाइए तो मोती डूंगरी का मंदिर गणेश जी का, राजस्थान के जयपुर शहर में बढ़िया कवर ड्राइव किया, कवर एक्स्ट्रा कवर एरिया में, एक रन मिलेगा फिलहाल बल्लेबाज कमल को। जॉन्टी के पास स्ट्राइक।
वापस गेंदबाज, सभी मेहमान हमारे बढ़िया क्रॉस गए, एक ही रन मिलेगा। ओह, थोड़ा जोखिम भी हो सकता था। जितने भी मेहमान हैं हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और जो हमारे सम्मानित अतिथिगण जिन्हें निमंत्रण मिला है नागपुर क्रिकेट वार के लिए, जैसा शीश भी कह रहे हैं, क्रिकेट हमारे देश में खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। तो इस धार्मिक अनुष्ठान में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका सभी का आभार और धन्यवाद। ऑफ स्टंप के बाहर और ये बढ़िया कैच, क्या कहना, बहुत ही लाजवाब टेकन। जी हाँ, बहुत ही शार्प कैच पकड़ा यहां पर, कोई दो राय नहीं। यहां पर हालांकि अब फैसला तीसरे अंपायर की ओर ट्रांसफर किया गया। अब देखना है कि यहां पर कैमरे ने क्या कैप्चर किया है। अगर कैप्चर किया है तो देखना है वो क्या था। विकेट की तारीफ तो करनी होगी, अच्छी डाइव लगाई। आगे की ओर डाइव लगाना इतना सरल नहीं होता। युवराज सिंह आगे की ओर बड़ी अच्छी डाइव लगाते थे, युवराज सिंह की याद दिलाई है, और एरिया भी युवराज सिंह का यही होता था, पॉइंटर गली का। अब देखना है कि क्या ये कैच है या नहीं है, लेकिन प्रयास की तो तारीफ करनी होगी। पूरी तकनीक यहाँ पर है। ये देख लीजिए WDZ के व्यूवर्स जो इंटरनेशनल मैचेस में आप देखते हैं ना, एक तरीके से रिव्यू सा लिया गया है कि तीसरे अंपायर के हाई कोर्ट में अपील कर दिया यहाँ पर। फिलहाल धड़कनें बढ़ी हुई है और जैसे ही देखना है क्या निर्णय आता है, और वो निर्णय उधर अंपायर बताएंगे और सुनाएंगे इधर मोहम्मद शीश। ओवर टू यू मोहम्मद शीश। जी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कैच था, लेकिन और जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। ये लीजिए गणपति बप्पा मोरिया, और लगान 11 के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा। जी जी, लगान पूरा लगान वसूल रही है। एक अच्छी पकड़ इस मैच में लगान की, और जिस तरह से प्रवेश ने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे, जोश भर दिया यहाँ के दर्शकों में। यहाँ के जो जितने भी लोग मैच से जुड़े थे, बिल्कुल थोड़ा सा नीरस हो रहा था खेल, लेकिन 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाकर एक जोश भर दिया, एक नई जान फूंक दी इस पूरे टूर्नामेंट में। मैच में मजा आ गया। तेरह रन बने हैं और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं KKR के। मुश्किल में KKR, शाहरुख खान भी चिंतित होंगे इस वक्त KKR की दशा को देखकर। थोड़ा सा मुश्किल में है KKR। और लगान की अगर बात करें तो आमिर खान इस वक्त खुश होंगे यहाँ। तो दोनों ही टीमें अपने आप में नेम फेम के लोगों से जानी जाती हैं, KKR और लगान 11। ये गेंद, एक अच्छी गेंद, समझ पाना मुश्किल, बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा खा गए। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अंपायर वहां पर गए हैं, एक जबरदस्त अपील, एक अच्छी बॉलिंग, अनुभव को पूरी तरह से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर। और क्या खूब कैच लिया था स्लिप पॉइंट में। दाद देनी होगी जिस तरह से क्रिकेट के प्रति समर्पण है उनका, और यह समर्पण निश्चित रूप से सराहनीय है। एक गेंद, फिर से कैच का खतरा और KKR को एक और नुकसान। लीजिए, न्यू बैट्समैन आ चुके हैं, और एक विस्फोटक पारी की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो रन चेस करना है वो बड़ा भारी स्कोर है, विशाल स्कोर है। और इस स्कोर को पीछा करते हुए स्नेहल पटेल बॉलिंग कर रहे हैं। क्या गजब की गेंदबाजी की है अब तक, पूरा अपना क्रिकेट का अनुभव झोंक दिया। स्लिप पॉइंट में एक खूबसूरत कैच भी पकड़ा था, और इस वक्त बॉलिंग की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन कसी हुई बॉलिंग बांध के रख दिया है। लगान के इस गेंदबाज ने हैरत में डाल दिया है। पटकी गेंद, शॉट खेला, जिदिन है, फिर कोई रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया।
एक बार फिर से ड्राइव किया, एक और सफलता, एक और सफलता इस ओवर में 2 विकेट। क्या बेहतरीन बॉलिंग, मौका नहीं दिया था, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी बॉल को, बैकफुट पे जाने की कोशिश की थी लेकिन उससे पहले गेंद पहुंच गई, स्ट्रोक खेलने के लिए बाध्य हुए और सीधे चली गई। शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया, कैच वापस होकर पवेलियन चले गए। गजब की बॉलिंग का प्रदर्शन नागपुर क्रिकेट वार में। एक बार फिर से स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ पुल करने की कोशिश की थी, 1 रन मिल जाएगा और 1 रन आराम के साथ भागकर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। यही आवश्यकता है कि आप इतने रन का, जब इतना विशाल स्कोर है उसका पीछा कर रहे हैं तो दबाव में आएगी आपकी टीम ही, स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा। फिर से अच्छी बॉल खींच दी, थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश की थी, देखा बल्लेबाज का मूड है आगे बढ़ के खेलने का तो उसे बैकफुट पर भेजा। क्या ट्रिक से गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी। स्नेहल पटेल की बॉलिंग, चौदह रन 5 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का इशारा आ गया है। यहां से 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 14 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। मुश्किल है, 30 गेंदों पे 76 रन चाहिए, कैसे बनेगा ये रन, मुश्किलें। लेकिन क्रिकेट में जो है आप इसे नामुमकिन नहीं कह सकते, कोई भी भविष्यवाणी करना क्रिकेट में खतरे से खाली नहीं है। 76 रन चाहिए, 30 गेंदें यानी शेष हैं, 5 विकेट हाथ में हैं। एक बार फिर से शॉट खेला है, गेंद जा रही है लगान बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। अंपायर को देखना होगा, ये गेंद सीमा रेखा पार कर गई। 4 रन, 4 रन बहुत देर के बाद। 18 रन स्कोर जा पहुंचा। कट किया इस बार स्लिप पॉइंट में, अच्छी फील्डिंग, फिर से अच्छा प्रदर्शन। लखन बल्लेबाजी कर रहे हैं। यह गेंद अच्छी फ्लाइट की गेंद लखन के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट करने की कोशिश की, गेंद को स्लिप पॉइंट से फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं बना। परवेश ने जिस तरह से 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाया था, वो प्रेशर जो बना, वो दबाव जो बना, मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, जो है आपका मोरल डाउन हो जाता है, वही कुछ हो रहा है इस मैच में। गए कैच का खतरा और एक और कैच, एक और विकेट, 6ठा विकेट गिरा है। पूरा लगान 11 ने जो इस तरह से नकेल कसी है, सिकंजा कस दिया है पूरी तरह से, पूरा लगान वसूल करेंगे केकेआर से। 6 विकेट 18 रन। रोक के संभाल के खेले, कदमों को आगे ले गए क्रीज के, सुरक्षात्मक स्ट्रोक, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं। शॉट और इस बार 4 रनों के लिए गेंद गई है, नेट से टकराई, स्ट्रेट ड्राइव, कदमों का इस्तेमाल किया, ओवर पिच गेंद थी, 4 रन। चौबीस गेंदों में 68 रनों की दरकार, 4 विकेट हाथ में है। केकेआर के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 22 रन अब तक बने हैं, 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 24 गेंदें यानी शेष हैं। 24 गेंदों में क्या कुछ करते हैं, यहां से जाना पड़ेगा हिट के लिए। गेंद और बैट से कोई मुलाकात नहीं, थोड़ी सी स्पिन हुई बॉल इस बार ऑफ स्टंप से पढ़ने के बाद और बाहर निकली, बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा गए, कोई रन नहीं।
इस बार फिर से ड्राइव किया, स्क्वायर लेग अंपायर के रीजन में 1 रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। हार के अंतर को भी कम करने की चुनौती, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से भी छूटी गेंद, और इस बीच अच्छी रनिंग विकेटों के बीच अच्छी दौड़, दोनों ही बैट्समैन अपनी क्रीज को बदलने में सफल हो गए। एक बार फिर स्पीडोमीटर रोक के संभाल के खेले, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, सीधा थ्रो किया। फिर से रोक के संभाल के खेले, रन नहीं मिलेगा, मौका नहीं रन बनाने का। नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का यह तीसरा मुकाबला, और लेग स्टंप से फिर से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। स्टोक के लिए गए, इस बार नेट से टकराने की पूरा चांस, और गेंद जाके नेट से टकराई। 6 रन, पहला छक्का इस इनिंग का। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, इसी तरह के स्ट्रोक की दरकार है। फिर से चार्ज होना पड़ेगा, कैच हो सकते हैं, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये आउट। पहले छक्का और फिर वही उसी तरह का ट्राई किया, गेंद सीधे चली गई विकेट हाथ में फील्डर के, और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस। इस 7वां झटका लगा है। 6 ओवर हो गए ना बेटा? 6 ओवर 32 रन। आने वाले 18 गेंदों का आंखों देखा हाल सुनाएंगे वरिष्ठ कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। फिलहाल 1 रन और, इस समय रन संख्या जा पहुंची है 33, और 7वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। मुश्किल ज्यादा है, 57 रन, 57 रन नीडेड इन 70 बॉल्स। लेग स्टंप के बाहर का बॉल, अंपायर ने बताया वाइड बॉल है, रन आ जाएगा एक और अतिरिक्त के रूप में। ये बढ़िया सीधा बल्ला ले गए, अंदर की बॉल पे, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, कमर की ऊंचाई का। अच्छा, थोड़ा सा इनसाइड आउट गए खेलने के लिए, और रन सिर्फ 1 मिलेगा यहाँ पर केकेआर के बल्लेबाज को। यानी कि बढ़िया पुल, हालांकि फील्डर डीप मिड विकेट में, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल कोने में मारा था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, इसी के साथ एक और विकेट का पतन। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर खंडेलवाल नाइट राइडर्स की अगर हम बात करें तो 7 विकेटें गिर चुकी है। जी नहीं, 8 विकेट। अंतिम बल्लेबाज, इस क्रिकेट के नियम के अनुसार जो एकमात्र बल्लेबाज होता है वो बल्लेबाजी आउट करता है, नहीं कि प्योर पूरी टीम को जो आउट, अमूमन एक बल्लेबाज नॉट आउट रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि बल्लेबाज जो नॉट आउट बल्लेबाज है वो भी जाते हुए अब देखना है क्या कुछ करेंगे। हो बढ़िया जगह बनाई, स्क्वायर कट किया, पॉइंट कवर पॉइंट एरिया में फील्डर मौजूद। अब यहाँ पर देखना है, औपचारिकताएं सी हैं, बल्लेबाज पे सारा कुछ दारोमदार, बढ़िया कट किया है, 1 रन मिलेगा। सारा कुछ दारोमदार इस बल्लेबाज के पास। ये बल्लेबाज अपनी टीम का एकमात्र उम्मीद, अब देखना है कितनी प्रबल उम्मीद है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रन बना लेते हैं अकेले दम पे, तो फिर यूं कह लीजिए कि ये लीजिए पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 13 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने कैच को लपक लिया, इस तरीके से ये मुकाबला जीत लिया है। तो 53 रनों से, सबसे रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत यहां पर अर्जित कर लिया। फिलहाल अगला मुकाबला प्रारंभ हो उससे पहले एक बार फिर हम चलते हैं यहां पर अमर जाजू और पूजा सिंह, ओवर टू यू। थैंक यू सर। क्या रोमांचक मुकाबला रहा, और लगान 11 क्या मजेदार तरीके से जीती है आज। जैसे कि सर ने कहा, पूरा लगान वसूल किया है इन्होंने।
Congratulations, Lagan 11.